Chapter 7 Indian Economy, and we have completed 4 lectures in this chapter. Now, in this 4 lectures, we have seen that what are the things happen or what are the things developed by the Britishers in before independence. So what was the Indian economy before independence under the Britishers rules? We have seen again, we have seen that ki some of the things they have developed, but some of the things they have exploited us, that is by charging different high rate of taxes, high rate of excise duties, by exploiting over the different artisans or small, we can say small businessmen, or we can say by taking all the benefits from us and exploited us. So some of the things they have made good for us, some of the things were bad for us. So this all things were happened under their British rule. Now today the topic which we are going to learn is about the Indian economy after independence. So after the Britishers went, what are the different challenges, what are the things India went through in the beginning of this particular independence time, and what was the economy that time, and how it started gradually develop and it became a developing country. So we are going to learn our topic, that is Indian economy, that after independence, that is after the British rule. So this is the part 1 for it. Again, there are so many points in it, so we are going to discuss in 2 different parts. So in the first one, that is let's just simply know a brief introduction that India, if today we can say, that is an emerging developing country. It is also known as emerging developing country. So we find that some of the areas are very well developed and some of the areas are not much developed here in this particular country. So many of the it is urbanization taking place. You find the industrialization is there, which gives so many employment opportunities are there. So all these things are going simultaneously, and lastly we are the characteristics at present, we can say India as a less developed but a developing nation which has been there, where there are few points we are going to learn under this. कैसे हम इसको जज करेंगे कि भाई ये डेवलपिंग कंट्री और नॉट अंडर डेवलप कंट्री, ना कि डेवलप कंट्री. तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम इज देयर. Second is the agriculture sector. We are going to differentiate and we can going to know industrial sector, service sector, population growth about the country after independence. Okay, poverty, what is the poverty status in our country. Then after unemployment, so how many persons are unemployed in our country and the ratio from the beginning till at present as per 2007 2011 census data. सो जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो 2011 सेंसस डेटा होगा, नहीं तो 13-14 एस्टिमेट डेटा होगा, और प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं करेंगे इसके अंदर. ठीक है. एंड लास्टली द ह्यूमन डेवलपमेंट. सो देर आर पर्टिकुलरली 8 पॉइंट्स विच आर बीन कवर्ड एंड विच डिस्टिंग्विश अस that India has a developing country. India has become a developing country in this after independence time. So over the period of 60 to 70 periods, you find that India has gradually increased its economic growth. It has been going attaining a good developing nation, and many improvement things have been done. So let's quickly start with some of the few points. First, that is per capita income. Now per capita income, we can say what is per capita income. You know about national income. National income हमको पता है. National income का मतलब that is a total production which has been done within the country along with the income of the employees, all together becomes the total production, or we can say national income. This total national income is been divided, is also known as gross income, and it has been divided by the total population of a country. So per capita income means per person how much capital is been present or it has been distributed on an average. So कहने का मतलब हमारा पूरा कंट्री में सपोज इट इज ओनली फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज वन देर इज वन फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री जिसका पॉपुलेशन है 1 करोड़ एंड द टोटल नेशनल इनकम इज we can say 10 lakh crores. So 10 lakh crore is a total national सब प्रोडक्शन लेके सब कुछ इनकम लेके 10 लाख करोड़ उसका एक कंट्री का ये है, and divided by 1 lakh crores. So if you divide it up, the zeros get cancelled, crores get cancelled. 10 lakh per person is an average income which has been earned by them. So ऐसे ही
हमारा इंडिया का जितना भी लाख करोड़ में हमारा टोटल इनकम होगा उसको डिवाइड करेंगे हमारे पॉपुलेशन जो 125 करोड़ पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 वी आर टेकिंग, वी हैव टू टेक द सेम सेंसस डेटा। करंटली अगर बात करें तो 138.9 समथिंग करोड़ है, ठीक है। सो पर कैपिटल इनकम is a per person income, per person average income which has been calculated estimatedly basis on taking total national income divided by total population of that particular country. Now here the HRD report, that is human development report, is here where they show us from 2013 that in 2013 this HRD report shows that what was the per capita income, or we can say what was the purchasing power parity, triple P. Now purchasing power parity means हमारे पास कितना इनकम है जो हम खर्च कर सके, खर्च करने के लिए हमारे पास कितने पैसे हो सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ पर कैपिटल इनकम, जिसका दूसरी वे में बोला गया है कि हम अगर ऑन एन एवरेज के पास एक पर्सन के पास $5,150 है तो एक साल में इतना खर्चा करेगा। यस, दैट इज डिपेंड अपॉन हिम, ही नीड टू स्पेंड और ही नीड टू सेव और ही नीड टू, बिकॉज देर आर सम और द नॉमिनल बेसिक नेसेसरी खर्चे होते रहते हैं। सो हियर व्हाट आई मीन टू से दैट हियर इंडिया per capita income in as per 2030 data of HRD was $5,150, which is lower countries, developed countries से ये कम है। एंड ऑल्सो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, चाइना है, उन लोग से भी हमारा ये कम है। बिकॉज चाइना की बात करें तो इट वॉज $11,477 एज पर 2030 HRD, एंड श्रीलंका की बात करें तो 9,250, और हम कहाँ पे हैं 5,150 पे है। सो वी फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर report says that our purchasing capacity is less compared to the other developing nation also. So एक टेबल है यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। देयर इज वन साइड इज अ कंट्री एंड अदर साइड इज अ पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स। सो PCI मीन्स पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सो फर्स्ट कम्स दैट इज नॉर्वे विच इज हैविंग 63,909 US dollars, we can say, because everywhere when we try to we can say divide or just calculate, international currency is US dollar. So 63,909 पर पर्सन कैपिटल आएगा, मतलब उन लोग का जितना भी इनकम उसके पॉपुलेशन में अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो उन लोग के पास $63,909 आएंगे पर ईयर. So it is very well or very good. So it comes on the first. Then comes the USA. It is not as per the ranking. Some of the different nations which are been highlighted countries continuously in the news and everything. So इस वजह से इसका लिया गया. So USA. तो USA is 52,308. मतलब per person के on an average $52,308 आते हैं वो पूरे साल में वो लोग खर्च करने के लिए, अगर उन लोग का जितना भी टोटल नेशनल इनकम होता है उसमें यूएसए का. देन कम्स द जर्मनी. जर्मनी इज वेरी स्मॉल वी कैन से कंपेयर टू द यूएसए, वेयर वी फाइंड दैट $43,049 इज द पर पर्सन कैपिटल और पर कैपिटल इनकम विच इज बीन गिवन बाय देम. सो उन लोग का इतना इनकम है बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज, बिकॉज ऑफ द सो मेनी industrial areas are there. So we find that this is how it has been grown. Then after England 35,002, China which is our neighboring country 11,477, श्रीलंका नीचे है तो 9,250. मतलब कहने का मतलब इन लोग का पॉपुलेशन कम है इस वजह से इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसका नेशनल इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए. So India, where it has been the second largest country in the world or second largest populated country in the world, it is having 5,150. Whereas China की बात करें जो वर्ल्ड लार्जेस्ट, फिर भी उसका इकोनॉमिक और वी कैन से उसका नेशनल इनकम ज़्यादा है हमारे से. सो वी कैन से ऑलमोस्ट डबल विच इज़ बिन देयर, लेकिन हम पीछे क्यों है वो पॉइंट है. पाकिस्तान अगेन इट इज़ लेस देन अस, दैट इज़ 4,652. बांग्लादेश 2,713, वो तो आजू बाजू भी नहीं. तो कहने का मतलब दिस सम ऑफ द कंट्रीज. हमको पूरा याद नहीं रखना, हमको जैसे याद रखना है नॉर्वे, यूएसए, श्रीलंका, चाइना और इंडिया. ये 5 चीज़ें याद रख लो, काम है, काफ़ी है. यू कैन ईजिली कंपेयर एंड यू कैन ईजिली राइट. सो 4 याद रखो तो भी चलेगा. यहाँ पे इफ़ यू सी द
in this particular paragraph only you find that here only three datas are given, that is India 5150, China 11477 and Sri Lanka. तो आजू बाजू के तो याद कर लिए. अभी दो टॉप मोस्ट कौन है, यूएसए नॉर्वे. नॉर्वे पहले पे है, यूएसए सेकंड पे है, याद कर लो. सो ये ऐसे ही इजीली कंपैरिजन हो जाएगा. नो नीड टू मेक फुल टेबल फॉर यू अगेन. देन वी फाइंड दैट अगर इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात करें, लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें, तो यहाँ पे दिखाया गया कि 2011-12 में पर कैपिटा इनकम. नाउ दिस पर कैपिटा इनकम कैन आल्सो बी कैलकुलेट ऑन दी टू प्राइसेस, दैट इज करंट प्राइसेस, दैट एक्चुअल फ्लक्चुएटिंग प्राइस जो चल रहा है उसके अंदर वो ऑन एन एवरेज लेंगे, नहीं तो कांस्टेंट प्राइस. कांस्टेंट प्राइस मतलब लास्ट ईयर वाला प्राइस. सो लास्ट ईयर वाले प्राइस के हिसाब से, नहीं तो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करें. सो देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट और टू प्राइसेस ऑन विच this per capita income or national income also can be calculated. So here we find that in 2011-12 64,316 rupees. Okay, this is in not dollars, this is in rupees because we are talking about country India. So ये 64,316 rupees are the per person, we can say on an average. जब हम 2011-12 की बात करें, करंट प्राइस के हिसाब से भी सेम एंड कांस्टेंट प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर के प्राइस के हिसाब से. देन 2012-13 की बात करें तो इट हैज़ ग्रोन ऑन दी करंट प्राइस. करंट प्राइस के हिसाब से अगर मार्केट के प्राइस लेके चलते हैं, करंट प्राइस के प्राइस लेके चलते हैं, इट हैज़ ग्रोन अप, दैट इज 71,593 रुपीज़. वेर एज कॉन्स्टेंट प्राइस की बात करें तो 66,344 कांस्टेंट प्राइस. मतलब प्रीवियस ईयर के प्राइस के हिसाब से वो प्राइस बढ़ा तो है लेकिन इतना नहीं जितना वो लोग ने करंट मार्केट वैल्यू लेके बढ़ाया है. 2013-14 की बात करो, इट हैज़ रीच 80,000, मतलब 9,000 का फर्क आ गया, ऑलमोस्ट 9,000. सो 80,388 वॉज दिन ऑन द करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस कितना था, 69,959, ऑलमोस्ट 70,000. चलो 2014-15 की बात करें तो 88 533 एंड 74 193. सो अल्टीमेटली हमको सिर्फ यही देखना है. सी यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स, जस्ट हमको याद रखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम we have seen that this particular price per capita income has increased from 2011 to 2014-15. क्लियर. सो ये सोर्स कहाँ से लिया गया, ये एमसीक्यू याद रखना कि भाई इट हैज़ टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. क्लियर. सो यहाँ पे सोर्सेज हमको याद रखना है कि भाई how this per capita income from which sources it has been came. So it has came from HRD report 2014. okay, लेकिन हमको 2014 के रिपोर्ट आया था और वो दिखा रहा था 2013 का याद. ठीक है. So this is what you have to remember. Now the next point comes, that is agriculture sector. पर कैपिटा इनकम समझ आया. पर कैपिटा मतलब पर पर्सन एवरेज अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा और उससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब चीज़ डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप है, कौन डेवलपिंग है, एक्स वाई जेड. क्लियर. नाउ सेकंड इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा मेन बैकबोन है. So India is an agriculture sector, agrarian nation which has been there, we can say. और हमारा agriculture sector में it has gradually decreased. The employment has gradually decreased और we can say decline. क्यों decline हुआ? कि we have taken 1956, याद रखना यार, 1956 के अंदर, that is the second 5-year plan, we have made more focus on the industrialization. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जिसके अंदर वी हैव स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन डिफरेंट एरियाज एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फाइंड दैट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर विच वॉज द मेन सेक्टर हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन. यहाँ से इंटरेस्ट छूटते छूटते दूसरी जगह पे आ गए. देन डेवलप्ड नेशंस हैव लेसर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड हायर इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. जैसे जैसे डेवलप्ड नेशंस की बात करते गए कि हमको डेवलप्ड नेशन बना और डेवलप्ड नेशन में क्या होता है, वैसे ही सब जगह पे इंडस्ट्रीज बनती गई. बिकॉज डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करके ज़्यादा पैसे कमाते थे. तो यही चीज़ उन लोग यहाँ पे सभी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैं इंडिपेंडेंस के बाद की टाइम कर रहा हूँ. ठीक है. So every country is trying to achieve now this industrialization, and after that what happened? This industrial and service sector boosted up gradually more and more. So वो जब boost हो रहा था तभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो, बिकॉज यहाँ से पब्लिक कहाँ पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के अंदर जा रहा है. देन
एट सॉरी ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो 72% पीपल्स कहाँ पे थे, इट वॉज दे वर डिपेंडेंट और वी कैन से एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. 72% याद रखना, ठीक है, विच हैज़ डिक्लाइन टू 58% इन 2000. ओके 2000 2001 के अंदर, यहाँ पे लिखा नहीं है बट याद रख लो, ये नोट कर लो. 58% इन 2000 2001 एंड 49% इन 2000 वी कैन से 13 14. क्लियर. सो ग्रेजुअली ये तीन रेशियो याद रखने, 3% याद रखने, दैट इज 72 58 एंड 49. अगर 72 से डायरेक्ट 49 याद रखोगे तो भी अच्छा है, चलेगा, लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है कोई बार. सो दिस इज वेयर वी हैव सीन कि भाई पब्लिक ज़्यादा एम्प्लॉयड अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह पे कहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे डेवलप हो चुका है. कब से ज़्यादा बूस्ट मिला, 1991 से, जो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म. ठीक. चलो, तो इंडस्ट्री. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो मैंने जैसे बोला प्रीवियस एग्रीकल्चर में कि 1956 से उसको बूस्ट मिला, हमारे यहाँ पे भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने लगे, अच्छे से बूस्ट करने लगे. सो दिस पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर हैज़ इंक्रीज. एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज हो रहा था. एंड वी फाइंड दैट इट हैज़ कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज इन नेशन इन आवर कंट्री. मतलब हमारे यहाँ पे अभी जहाँ भी देखो वहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी एंड होगी. और इंडस्ट्री से जब है तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी होगा, बिकॉज वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, वी नीड बैंकिंग, वी नीड टेलीकम्युनिकेशन, वी फाइंड दैट डिफरेंट इंश्योरेंस. सो ये सब चीज़ें हमको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स वगैरह चाहिए. तो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज 10.6% 1950-51. मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, तो 1950-51 के अंदर 10.6% ही इंडस्ट्रियलाइजेशन था. कितना? 10.6%, विच हैज़ इंक्रीज टू 18.2% इन 2001 एंड फर्दर 24.3% इन 2011. याद रखना, 1951 में 10.6, 2001 में 18.2 एंड 2011-12 के अंदर 24.3%. मतलब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, ये डेटा से हमको पता चलता है. ठीक है. देन नेशनल इनकम की बात करें, द शेयर ऑफ नेशनल इनकम वॉज 16.6 इन 1995. मतलब ये ऊपर जो बात हुई है वो वी कैन से इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. अभी नेशनल इनकम में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो 16.6 कंट्रीब्यूट कर रहे थे, देन अब 26% हो गया 2013-14 में. एंड अभी की बात करें तो एक्सपोर्ट, तो एक पॉइंट एक्सपोर्ट का भी है. तो पहले पूरा 70% एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था, अभी प्रेजेंटली 2/3 मतलब 66.6%, that is 2/3 of the present time we find that it is all industrial product which is exported. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो गया. यस. सो ये याद रखना है कि कैसे शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा और नेशनल इनकम में शेयर कितना था, बराबर. तो नेशनल इनकम में टोटल जो इनकम होता है उसके अंदर 16.6%, अगर टोटल सेक्टर की बात करें तो 10.6%. ठीक है. तो ये याद रख, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. लास्टली कहने की बात यही है कि कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हमारे कंट्री के अंदर और हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. एंड देन आफ्टर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उसके बाद जो थर्ड सेक्टर बढ़ा, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर, जो हम आगे देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो इन दिस वी आर गोइंग हैव लर्न अबाउट ओनली we can say 3 points, that is per capita income, agriculture sector and industrial sector. Next class, that is the next part, we are going to learn about the left 5 points. And nextly उसके बाद वाले लेक्चर में हम चालू करेंगे इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कीप लर्निंग, कीप स्टार्ट राइटिंग द नोट्स. योर एग्जाम्स आर ऑल्सो नियर, सो यू जस्ट रीड, राइट, एंड दिस आर द डेटा, सो यू हैव टू रिमेंबर. सो पॉइंट वाइज अच्छे से हेडलाइन अंडरलाइन करके, डिफरेंट लाइन्स कलर पेन यूज करके, यू जस्ट मेक इट नोट. क्लियर. चलो, थैंक यू.